Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, alhamdulillah. Okay. Inshallah, today we will begin the 45th session of Ar-Rahiq al-Makhtum, the sealed nectar of our noble beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. We ended in our last session where we were talking about Ghazwa Khandak, and we were reciting certain verses from Surah Al-Ahzab. We'll continue from there. 3,000 Muslims with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as their leader came out to encounter the idolaters. They maintained Allah's promise of victory deeply in their minds. They established themselves at the mountain of Sila with the strength standing as a barrier between them and the believers. We are on page 414. For those who are referring to the hardbound books, 414 page. अब ऐसा हुआ कि 3,000 मुस्लिम्स जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको लीड कर रहे थे उनके साथ पहुंचे मुशरिक का सामना करने के लिए, और अपने दिलों में उनके जो थी वो अल्लाह का वादा था कि सक्सेस डेफिनेटली इनकी होगी। और उन्होंने अपने आप को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया? माउंटेन सिला, जो वो खंदक के आगे थी, और यानी इट वाज अ बैरियर बिटवीन देम एंड द डिसबिलीवर्स। जो trench thi, that was kind of a barrier in between believers and unbelievers. When the idolaters attempted to attack the Muslim and force an entry into Medina, they were surprised to see a white trench standing as an obstinate obstruction between them and their goal. तो जब वो अटैक करने के लिए मदीना में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे कि उनके बीच में ये इतनी बड़ी जो दीवार है, दीवार इन द सेंस के जो इतना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था, ट्रेंच बनाई हुई थी, तो उस वजह से वो बहुत शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि ये एक नई नोवेल टैक्टिक्स थी, एक न्यू आइडिया थी. This was a new tactic that was unknown in Arabia at that time. Consequently, they laid siege to Medina and began to go around the trench to find any weakness that they can exploit to gain entry into Medina. अब ये नई टैक्टिक थी, उससे ही वो घबरा रहे थे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद वो इधर उधर यानी दूसरी किसी चीज के लिए तलाश कर रहे थे कि कहीं से उनको कुछ और एंट्रेंस मिले. यस अजरा, Sorry, by mistake. Sorry. ऑलराइट. तो वो कोई और चीज को तलाश रहे थे जिससे कि उनको दूसरी जगह से कोई एंट्री मिल जाए. In order to deter the enemy from approaching the trench or bridging any gap in their defenses, the Muslim fired arrows and engaged clashes with them. अब मुस्लिम आर्मी जो है वो उनकी इस चीज का फायदा उठाने लगी कि जैसे ही वो घबराने लगे, इधर उधर होने लगे, तो इन्होंने जो है वो तीर फायर करना शुरू कर दिया. The veteran fighters of Quraysh were averse to this situation as they waited in vain for what the siege might reveal. They decided that a group of fighters, which would be led by Amr bin Abd Wadud, Ikrimah bin Abu Jahl, and Dirar bin al-Khattab, should work its way through the trench. The fighters managed to do just that, and their cavalry captured a narrow area between the trench and the mountain of Sila. अभी डेफिनेटली वो लोग भी आर्मी वाले हैं, उनको भी काफी सारी चीजों का एक्सपीरियंस था. तो एक जो टीम थी, जो 3 लोग लीड कर रहे थे, अमर बिन अब्द वदूद, इक्रिमा बिन अबू जहल और दिरार बिन अल-खत्ताब, उन्होंने अपना रास्ता यानी ट्रेंच के थ्रू गुजरते हुए वो आगे बढ़ने लगे, और एक उनको नैरो स्पेस मिला वो ट्रेंच के बीच में और माउंटेन सिला के बीच में, तो वो क्रॉस करने में कामयाब हो गए. Amr challenged the Muslims to a duel, to which Ali bin Abi Talib radiallahu anhu responded. After a short but fierce engagement, Ali radiallahu anhu killed Amr, which caused the others to withdraw in a state of panic and confusion. अभी इनके सामने क्रॉस करके अमर बिन अब्द वदूद पहुंचा, और उसने फिर वो डुअल फाइट यानी 2 लोग फाइट करेंगे उसका उसने चैलेंज जाहिर किया. तो अली इब्न तालिब रदियल्लाहु अन्हु सामने आए और उन दोनों की बहुत अच्छी डुअल फाइट हुई, एंड अली रदियल्लाहु अन्हु ने अमर को कत्ल कर दिया. ये देखने के बाद जो दूसरे थे वो और भी ज्यादा पैनिक और कंफ्यूजन में आ गए. However, days later, the Mushrik conducted another desperate attempt to bypass the trench, but all their efforts failed because of the steadfastness and heroic manner
of the Muslims whom they confronted. इसके बाद भी वो दोबारा से ट्राई करते रहे, अटेम्प्ट करते रहे कि ये जो खंदक है उसको कैसे क्रॉस किया जाए और कैसे मुकाबला किया जाए, कैसे मुसलमानों पर हावी होया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स की जो इस्तकामत थी उसके सामने ये बहुत ही कमजोर पड़ गए। The events of the Battle of the Trench were so severe that it caused the failure of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to observe some prayers during their appropriate time. यानी इतना टेंशन का माहौल था और इतना स्ट्रेसफुल माहौल था कि इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सलाह जो है वो सही टाइम पे अदायगी नहीं हुई। अब आप देखिए जंग माहौल और इतनी परेशानी, इतना इतना ज्यादा स्ट्रेस है, दुश्मनी हमला जानों पे अपनी बन पड़ी हुई है, लेकिन इनकी सलाह छूटी नहीं, सही टाइम पर अदायगी नहीं हुई, तो वो एक कितना बड़ा मुद्दा था उनके लिए। एंड हम लोग सुभान अल्लाह, हम लोग अपने अपने कंफर्ट जोन में होते हुए भी हम बेहतरीन पहले औकात में अपनी सलाहों का अदा नहीं करते। इमेजिन द मैग्नानिमिटी एंड द डिफरेंस इन एटीट्यूड। तो सुभान अल्लाह, हमें भी उतना ही सीरियस अपनी सलाह की अदायगी को लेना है जो कि हम पहले बेहतरीन औकात में इंशाअल्लाह ताला अपनी सलाहों को अदा करें। Al-Bukhari and Muslim reported that Jabir radiallahu anhu narrated, on the day of the trench, Umar bin al-Khattab radiallahu anhu came while cursing the disbelievers of the Quraysh and saying, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, I have not offered the Asr prayer, and the sun has set. The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, by Allah, I have also not offered the prayer. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then went to Buthan, performed ablution, and observed the Asr prayer after the sun had set, and then offered the Maghrib prayer after it. अभी ऐसा हुआ कि उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके वो कुरैश को कर्ज करने लगे और फिर कहा कि अल्लाह मैसेंजर, सनसेट हो गया और हमने असर नहीं पढ़ी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वल्लाही मैंने भी असर नहीं पढ़ी। फिर वो एक जगह पे गए, बुथान नाम की, वहां पे वुदू किया और पहले असर पढ़ी और फिर उसके बाद मगरिब की अदायगी की। He invoked Allah's wrath on the enemy and begged him to fill their houses and their graves with fire because they distracted him from observing the Asr prayer. It was narrated by Ahmad and Shafi'i that the events of that battle detained him from the Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha prayer, but he combined them. The different narrations point to the fact that the situation lasted for a few days. यानी ये जंग की गहमा गहमी और परेशानी और मुश्किलों के बीच में इनकी नमाज डिले हो गई। मिक्स्ड ओपिनियंस है, कहीं पर है कि जोहर असर मगरिब नहीं हुई थी, तो एनीवेज उन्होंने कंबाइन किया। It is clear that direct confrontation between the two armies was very limited because of the trench that stood between them. However, military activities against each other still existed, which was mostly confined to shooting arrows. The fight only claimed the lives of a small number of fighters, 6 Muslims and 10 polytheists, and 1 or 2 who were killed by sword fighting. यानी जो एक प्रॉपर वॉर की जो मुठभेड़ होती थी वो होना मुश्किल था बिकॉज ऑफ द ट्रेंच, लेकिन दोनों पार्टी जो थी अपनी अपनी जगहों से तीर अंदाजी कर रहे थे और बहुत लिमिटेड नंबर कैजुअलिटीज थी। 6 मुस्लिम्स थे और 10 मुशरिक थे और इक्का दुक्का जो है वो तलवारबाजी में मारे गए थे। During the course of fighting, Sa'd bin Mu'adh radhiyallahu anhu was shot by an arrow that penetrated his artery. Realizing that his death was approaching, he supplicated to Allah Azza wa Jal, saying, Allah subhanahu wa ta'ala, you know nothing is closer to my heart than striving in your cause against the disbelieving people who belied and exiled your messenger. Allah, I deeply believe that you have decreed that we should fight them. So, if there is still more fighting that remains against them, then let me live so that I can strive against them. If it has ceased, then I beg you to let it bleed again so that it becomes the cause of my death. He concluded his supplication begging to Allah Azza wa Jal not to let him die until he had taken full revenge on Banu Qurayza. अभी साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु जो सहाबा थे उनको एक एरो लगी जो उनकी आर्टरी के अंदर, मेन आर्टरी के अंदर पेनिट्रेट कर गई, जिससे कि उनको रियलाइज हो गया कि उनकी जो डेथ है वो करीब है। तो उन्होंने झट से अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से कहा कि आप जानते हो कि मेरे दिल के करीब कोई और चीज नहीं है, बस ये है कि मैं अल्लाह की खातिर जो है ये कुफार लोगों के साथ जंग करूं जिन्होंने अल्लाह के मैसेज को झुटलाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन से जिला वतन किया। उसके बाद
अगर मेरे लिए ये है कि मैं इनके अगेंस्ट फाइट करूं तो मुझे थोड़ी और जिंदगी दे दो, लेकिन अगर ये मामला खत्म होता है तो नो प्रॉब्लम, ब्लीडिंग शुरू हो और यही मेरी मौत की वजह बने। फिर उन्होंने अपनी दुआ कंप्लीट की, अल्लाह से दुआ करते हुए कि उनको तब तक के मौत ना आए जब तक कि उन्होंने पूरा बदला बनु कुरैजा के साथ ना ले लिया हो। In the midst of these difficult circumstances, plotting and strategies were in full usage against the Muslims. The chief criminal from Bani Nadir, Huyai, went to the locality of Bani Qurayza to incite their chief, Ka'ab bin Asad al-Qurayzi, who had a treaty with Allah's messenger, to run to his aid in times of war. अभी इसके बीच में भी उनका षड्यंत्र, उनकी खुंदकबाजी, उनका जहर वाला जो एटीट्यूड है वो चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ये जो चीफ क्रिमिनल था बनी नदीर के यहाँ से हुए, वो गया बनी कुरैजा की चीफ के पास जिसका नाम काब बिन असद अल कुरैजी था। अब ये काब बिन अल असद अल कुरैजी का जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा था कि वो अगर टाइम्स ऑफ वॉर होगा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो जाएंगे। Initially, Kaab resisted all Huwai's attempts, but Huwai, who was clever enough to manipulate him, began to speak of the Quraysh and their notables in Al-Asiyal as well as Ghatafan and their chieftains who had camped at Uhud, all who had only one intention, the extermination of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers. Additionally, he promised to remain in Kaab's fort, thereby exposing himself to any potential danger if the Quraysh and Ghatafan recanted from their alliance. This wicked person continued in this manner until he managed to convince Ka'ab to join his side and break his covenant with the Muslims. So Banu Qurayza also began to launch military operations against the Muslims, especially in the secluded parts of the city that housed the Muslim women and children. अभी काब जो है इनिशियली हुए कि ऑफर्स को रिजेक्ट करता रहा, लेकिन वो इतना शातिर है, उसने उनको काफी सारी चीजें बताकर उनका दिमाग जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की। उसने याद दिलाया कि उहद के अंदर उनसे क्या हुआ था, कुरैश जो थे आलासियल के, गताफान जो थे जो कि उहद में थे, और उन सब का जो एक ही इरादा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबास को कत्ल करें। फिर उसने और एक प्रॉमिस लिया कि मैं जो है काब के जो फोर्ट है उसके अंदर रहूंगा ताकि जो डेंजर्स हैं उससे बच जाए। फिर वो जो विकेट पर्सन था वो कंटिन्यूसली काब असद अल कुरैजी को भड़काता रहा कि वो जो है मुस्लिम्स के साथ अगर उनका जो कोवेनेंट है, इफ दे जॉइन हैंड्स टुगेदर, तो उनके कोवेनेंट ब्रेक करने से इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि और भी जो दूसरे इवलिश ग्रुप हैं वो भी इनको ज्वाइन कर लेंगे। सो बनु कुरैजा जो है फिर धीरे धीरे मिलिट्री ऑपरेशंस अपने लॉन्च करने शुरू कर रहे थे, स्पेशली उन पार्ट्स में, क्योंकि अभी यहाँ पर जंग के लिए ये लोग पूरा मुस्लिम सहाबाज एंड आर्मी जो है वो इन्वॉल्व है। तो अब वो उसको किस चीज के लिए भड़का रहा है कि उस पार्ट पे अटैक करो जहां पर वुमेन और चिल्ड्रन अभी अकेले हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो मर्द हजरात हैं वो पहुंच गए हैं जंग के लिए, तो वो जो वीक पोर्शन है या वीकर सेक्शन है उसको अटैक करने के लिए तैयारी करें। आप देखें ईवल बंदा जो है वो ईवल इरादे करता है, कोई मॉरल्स, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई वैल्यूज नहीं, यानी सारे मिलिट्री के जो एथिक्स या मॉरल्स या रूल्स होते हैं उसको ब्रेक करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती। According to Ibn Ishaq, Safiya bint Abdul Muttalib radiallahu anhu was in a fort with Hassan bin Thabit radiallahu anhu, as well as some women and children, said, a Jew was spotted moving suspiciously around our area, which was vulnerable to an enemy attack. Because there were no men to defend, and because of the fighting against Banu Qurayza, which made a barrier between us and Allah's messenger, there was no one between us and them to defend us, while Allah's messenger and the Muslims were engaging their enemies whom they were unable to leave alone. So I said, Hassan, as you can see, this Jew is moving around the area. By Allah Azza wa Jal, we are in danger of the Jew, seeing that we are not protected when Allah's messenger and his companions are busy. So go out and kill him. अभी ऐसा हुआ इब्न शाह की नरेशन के हिसाब से कि सफिया बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु जो है वो एक फोर्ट में थी हसन बिन थाबित रदियल्लाहु अन्हु के साथ, और कुछ औरतें और बच्चे उनके साथ थे। उन्होंने देखा कि एक यहूद जो है वो बड़े अजीब तरीके से उनके एरिया में घूम रहा था। तो उन्हें पता था कि ये इनका जो एरिया, जो फोर्ट वाला एरिया है, ये एनिमीज के अटैक के लिए बहुत ज्यादा उन पे खतरा मंडरा रहा था। और चूंकि सारे आदमी मर्द हजरात जो हैं वो उधर खंदक में बिजी थे,
उनके कुरैश के साथ लड़ने में और उधर डिफेंड करने में, तो इधर इनके पास कोई भी नहीं था। तो उन्होंने कहा हसन बिन थाबित को कि तुम ये बाहर जाओ और इस जीव को जाके कत्ल कर लो। He said, by Allah Azza wa Jal, you know that I am not suitable for this. So I got ready and took with me a pole and descended from the fort to him. I beat him with the pole until I killed him. I returned to the fort and said, Hassan, go down there and take his armor. For I was only prevented from doing so because he is a man. He replied, I do not need any armor. This single event had far-reaching consequences in discouraging the Jews from conducting any further attack against the Muslim women. अब आप देखिए, सफिया बिन अब्दुल मुतालिब रदियल्लाहु अन्हा ने हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि ये जीव को जाके कत्ल करो। उन्होंने कहा मैं इस चीज के लिए रेडी नहीं हूं। तब क्या सफिया बिन अब्दुल मुतालिब रदियल्लाहु अन्हा खुद भी डर के बैठ गई? नहीं, वो खुद उतरी, नीचे उतरी, उन्होंने एक पोल लिया और उतरने के बाद उसको मारा और उसको कत्ल कर दिया। फिर वो पहुंची फोर्ट में और हसन को कहा कि जाकर अपना उनका जो आर्मर है वो लेकर आ जाओ। और फिर ये जो है ना, ये खबर जो है दूर दूर तक पहुंची यहूदों के पास, और फिर उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें जो है मुसलमान की जो औरतें हैं वो भी सुभानअल्लाह बहुत स्ट्रांग है और वो भी वक्त पड़ने पर दुश्मनों का कत्ल कर सकती हैं। इट इज सो एनकरेजिंग, सो इंस्पायरिंग। आप देखें, हमेशा बिचारी वाली स्टेट या हमेशा यू नीड समबडी टू प्रोटेक्ट यू वाली स्टेट नहीं है। Subhanallah, this proves that she was active. This proves that she was trained. This proves that कि वो अपनी physical state में थी कि अपना बचाव भी कर सकती थी और दुश्मन का कत्ल भी कर सकती थी। Subhanallah. They began to think that those areas were fortified and protected by Muslim fighters. However, they continued to provide the idolaters with supplies as an indication of their support for them against the Muslims. यानी ये जो थे यहूद, ये फिर भी अपनी जो दुश्मनी है वो किस तरीके से बताते रहे, जाहिर करते रहे। वो उनको जो है आर्म्स एंड एमिनेशन एंड सपोर्ट्स एंड सप्लाईज जो है वो पहुंचाते रहे। On hearing the dreadful news of the Jewish betrayal, the Messenger ﷺ dispatched 4 prominent Muslim leaders: Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubayd radhiyallahu anhu, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, and Khawad bin Jubair radhiyallahu anhu to investigate the reports. He warned them against spreading the reports among the people if they proved to be true, fearing that this would spread panic among them. However, if the reports proved to be false, then to declare them as such publicly. Regrettably, the 4 men discovered that the reports were true, and the Jews themselves openly denounced that treaty of alliance no longer existed with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप देखें कि ये जो यहूद थे वो बार बार दगाबाजी, धोखेबाजी और दुश्मनी अपनी जाहिर करने में कभी भी पीछे नहीं रहे। वो कंटिन्यूसली कोई भी इनके साथ मुआहदा करो वो तोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। जहां कहीं भी कुछ भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आओ वो उसको छोड़ के अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पता चला कि ये यहूदों ने फिर से धोखा दिया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स को उनके पास भेजा कि इन्वेस्टिगेट करो। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो भी उनकी फाइंडिंग्स होगी, जो भी उनकी रिपोर्ट होगी, वो लोगों के अंदर आप नहीं जाहिर करना, क्योंकि पैनिक हो जाएगा लोगों में। एनीवेज, जो रिपोर्ट मिली उनके पास वो झूठी थी। देन टू डिक्लेयर देम एज पब्लिकली, यानी उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने कहा कि ये लोगों ने इस तरीके से कुछ काम नहीं शुरू किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये रिपोर्ट जो थी वो झूठी नहीं थी, ये रिपोर्ट जो थी वो सच्ची थी, क्योंकि ज्यूज जो थे वो इस काम में लगे हुए थे। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद यहूद ने ओपनली भी डिक्लेयर कर दिया कि हमारा कुछ मुआहदा नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसमें उन्होंने ब्रीफ किया अपने मुस्लिम्स को, उनको बताया कि ये थोड़ी क्रिटिकल पोजीशन है और उनके ऊपर बहुत खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि आगे देखिए आप, कुरैश लड़ाई कर रही है, पीछे जो है, और पीछे से आगे से जो है बनु कुरैजा की अटैक्स आ रही हैं, पीछे से यहूद दगाबाजी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो मामला जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, स्ट्रेसफुल है, और इनके जो वुमेन और चिल्ड्रन है वो अनप्रोटेक्टेड हैं। अब इस पे अल्लाह की वही नाजिल होती है, सूरह 33 वर्सेस 10 और 11। And when the eyes grew wild and the hearts reached to the throats, and you were harboring doubts about Allah Azza wa Jal, there the believers were tried and shaken with the mighty shaking. यानी सिचुएशन अभी घबराने वाली है।
जैसे मैंने कहा आगे कुरैश और बनु कुरैजा की अटैक्स चल रही हैं, पूरा मुस्लिम जो मेल तबका है और आर्मी है जो उनकी वो उधर बिजी है, इधर जो है यहूद जो है वो अपने बात से फिर गए और वो वुमेन और चिल्ड्रन जो बहुत वल्नरेबल हैं उनके ऊपर अटैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाके पैनिक और स्ट्रेस वाला माहौल तो बन चुका है। लेकिन जैसे कि अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई है कि बिलीवर्स जो हैं वो थोड़े से डाउट्स में आ रहे हैं, वो थोड़े शेक हो रहे हैं। Now that the Muslims were defensively confined at the perimeter of the trench, the hypocrites began to taunt them for having false hope of defeating Kisra, the emperor of Persia, and Caesar, the emperor of the Romans. They began to sow the seeds of defeatism and withdraw from the defense of the trench by pretending to defend their own homes, which were in no way exposed to any danger. यानी अभी वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो ये लोग तो ट्रेंच में बिजी हैं और ये लोग कहाँ, इनमें कौन सी ताकत है। यस रीन, यस I'm so sorry. Surah 30, ayah 10 and 11. सूरह 33 या सूरह अहज़ाब की आयतें हैं 10 and 11। Okay, jazakallah. तो फिर जो है वो ये उनकी मजाक उड़ाने लगे कि भाई ये देखो ये लोग उधर बिजी हैं, इनकी औरतें बच्चे यहाँ पे बिल्कुल एक्सपोज्ड हैं, और ये लोग हैं वो जो प्रॉमिस करते हैं कि हम एम्परर ऑफ पर्शिया एंड द एम्परर ऑफ सीजर्स किसरा वगैरह को डिफीट करेंगे। तो ये अपने लोगों के दिलों में जो है नाउम्मीदी, डर, फियर को डालने लग रहे थे। और फिर कहते हैं कि हमें अभी कोई मदीना की बाउंड्रीज को हमें डिफेंड नहीं करना, हम अपने अपने घरों को जाके डिफेंड करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा बेटर है। देयर इज अनदर रेफरेंस फ्रॉम द सेम सूरह, सूरह 33 वर्सेस 12 to 13। And when the hypocrites and those in whose heart is a disease of doubt said, Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam promised us nothing but delusions. And when a party of them said, O people of Yathrib, which is Medina, there is no stand possible for you against the enemy attack. Therefore go back. And a band of them asked for permission of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saying, truly our homes lie open to the enemy, and they lay not open, but they wish to flee. यानी वो लोग यही बार बार कह रहे हैं, यानी उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं जो जिनके दिल में मुनाफिकत है और वो डाउट है, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने हमारे साथ कोई प्रॉमिस नहीं किया, इन लोगों ने हमें सिर्फ गफलत में डाला हुआ है, डिल्यूजन्स में डाला हुआ है, और हमारे जो लोग हैं मदीना के, हम लोगों का कोई चांस नहीं है कि हम इन दुश्मनों के अटैक को झेल पाएंगे। तो हमारे लिए बेहतर क्या है? हमारे लिए बेहतर ये है कि हम जाके अपने अपने घरों में बैठे अपने घरों की प्रोटेक्शन करें, क्योंकि अब जो है हम लोग एक्सपोज्ड हो चुके हैं, हम हारने वाले हैं, हम कमजोर पड़ चुके हैं। आप देखिए ये सारी बातों से हमें क्या समझ आ रहा है कि द सेंटेंसेस दैट वी यूज, जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसका एक पावर होता है। अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करते हैं तो आपका जहन, आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है उसी तरीके की पॉजिटिविटी रिलीज करता है, और आपके अंदर जो है उस तरीके की पावर, एनकरेजमेंट आती है, मोरल बूस्ट होता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव की तरफ एक्सपोज्ड हैं और बार बार आप कहें नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकती, अब तो मैं हार गई, खत्म, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, अब तो ये नहीं है, अब तो वो नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि सिचुएशंस जब आती है तो कुछ लोग जो होते हैं उनके नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उनके पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। नेगेटिव वाले जो है वो अपनी नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं, हमारी जो थोड़ी बहुत होप रहेगी उसको भी खत्म कर देते हैं, हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा उसको भी खत्म कर देते हैं। उसी तरीके से ये इस तरीके से बार बार बोलते जा रहे थे और उनके दिमागों के अंदर, दूसरे लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर रहे थे, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, नाउम्मीदी क्रिएट कर रहे थे, और उन्हें कंफर्म कर रहे थे कि खलास अब हम डिफीट हो चुके हैं। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam wrapped himself in his robe and began to contemplate on the treachery of Banu Qurayza. The spirit of optimism prevailed over him, and he rose to his feet, saying, Allah is the most great. Muslims listen to Allah's good tidings of victory and support. Subhanallah. Then and there, देखिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल, जैसे ये लोग नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों के दिलों में उम्मीद जो है, कॉन्फिडेंस जो है उसको खत्म कर रहे हैं, वहीं पर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को रैप किया, यानी अपने आप को गैदर किया उन्होंने, और फिर वो उनको इस चीज का अंदाजा लग गया था कि बनु कुरैजा जो है वो किस तरीके की ट्रेचरी या किस तरीके की धोखाधड़ी कर रही है, और उनका प्लान जो है वो क्या है। वो अपनी पॉजिटिविटी के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, मुस्लिम्स लिसन, ये बशारत आप समझो कि आपकी फलाह है। He then began to set forth decisive plans aimed at protecting the women and children. He sent some fighters back to Medina to help guard the women and children against any surprise assault by the enemy. The second step was to take action that could lead to undermining the ranks of the disbelieving confederates. For this purpose, he thought of offering the chiefs of Ghatafan a third of Medina's fruit crops
if they would withdraw from the confederacy. He sought the advice of his chief companions, Sa'ad bin Muad radhiyallahu anhu and Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu anhu, who gave the following reply. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट दिए, उसके बाद उनका प्लानिंग शुरू हुआ, यानी क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। पहले स्टेप उन्होंने ये किया, उन्होंने कुछ फाइटर्स को जो है वो मदीना में पहुंचाया औरतों की और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये इकट्ठे हो रहे थे ना सारे, बनु नदीर, गताफान और कुरैश और ये सारे, तो उन्होंने ऑफर किया, उन्होंने चीफ ऑफ गताफान को क्या ऑफर किया कि वो 1/3 मदीना के जो फ्रूट्स एंड क्रॉप्स हैं उसको उन लोगों को देंगे अगर वो लोग विड्रॉ करते हैं। फिर उन्होंने अपने जो सहाबास थे, अपने जो चीफ कंपेनियंस थे, साद बिन मुआद एंड साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हुमा को, उन लोग को पकड़ के उनसे एडवाइस लेना शुरू किया। अब वो लोग क्या कहते हैं, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, if it is the order of Allah Azza wa Jal, then we shall obey it. But if it is a new course that you wish to follow in order to provide us with security, then we are not in need of it. We knew those people in Mushrik and in Kufr, and we can safely say that they are not in the need of the fruits from our orchards. Rather, their need is the complete extermination of us. अभी वो कितना, यानी उन लोगों की आप बातें देखिए, इतनी उसमें इंटेलेक्चुअल और विजडम होती है। वो दोनों सहाबस क्या कहने लगे, वो कहते हैं कि अगर ये अल्लाह का ऑर्डर है तो हम ओबे करते हैं, लेकिन आप अगर ये न्यू कुछ एडिशन इंस्ट्रक्शंस या एक्शन फॉलो करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों की सिक्योरिटी का मामला है, तो आई डोंट थिंक सो हमें इस चीज की जरूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मुशरिक लोग हैं, ओके, इन लोगों को हमारे ऑर्चर्ड्स के फ्रूट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका मकसद क्या है कि हम सबको कत्ल कर दें। Now that Allah has honored us with Islam, we believe that the best option in this situation is to put them to the sword. कहते हैं हम लोगों ने जब दिल से इस चीज को माना है कि हम इस्लाम में दाखिल हुए हैं और हम अल्लाह को ऑनर करते हैं और इस्लाम को ऑनर करते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम इनके साथ जंग क़िताल करें, हम अपनी तलवारों से इनका जवाब दें। Therefore, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam corrected their view by saying, "It is only something being done for you after I saw the Arabs shooting at you arrows from an unified bow." कहते हैं ये मेरा जो फैसला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये मेरा जो ओपिनियन या व्यू है, ये इसलिए है कि मैं देख रहा हूं कि ये अरब्स जो हैं वो इकट्ठे होके एक यूनिफाइड बो से शूट कर रहे हैं। तो यानी समझदारी, देखिए आप हर जगह पे ताकत की जरूरत नहीं होती है, कहीं पर दिमाग की जरूरत होती है, कहीं पर फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो ये जो है लीडर का काम होता है टू आइडेंटिफाई वेयर ही हैज टू पुट द फिजिकल प्रेशर एंड फोर्स एंड वेयर ही हैज टू यूज द इंटेलेक्चुअल। तो ये जो है एक तरीकाकार है उनके अंदर ही ब्रेक करने का, और एक ऐसा सोल्यूशन विद काइंड जहां पर हम अपनी प्रोटेक्शन भी करें और हमारे लोगों की जानों की हिफाजत भी कर सकें। जी रीन, ये जो यूनिफाइड बो है, दैट इज लाइक इन टर्म्स ऑफ वो लोग अपने वर्ड से कर रहे थे या लाइक प्रॉपर यूनिफाइड बो मींस दे आर जॉइनिंग हैंड्स विद अलायंस ना, ये सारे इकट्ठे होके, यानी ये पूरे 10,000 आए हुए थे, और अभी भी जो है डिफरेंट डिफरेंट चीफ्टन्स जो हैं जिनके साथ ऑलरेडी मुआहदा हुआ था वो भी अपने वर्ड से पलट रहे थे ना। तो इसीलिए ये जब इकट्ठे हो गए हैं तो इसमें हम नंबर्स में कम हैं, विच इज टोटली ट्रू। और फिर उसके बाद हमारी वुमेन एंड चिल्ड्रन भी एक्सपोज्ड हैं, तो मौके की जो नजाकत थी उसको मद्देनजर रखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोगों को ब्रेक करना चाह रहे थे। ओके, यानी हर जगह पे हम लोग अपनी अंधाधुंध ताकत के ऊपर नहीं जा सकते, कहीं कहीं पे हम लोगों को कुछ सर्टेन स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम उनको इंटरनली कमजोर कर सकें। Allah the Glorious and Exalted created conflict between the enemies of Islam which would lead to their eventual defeat. Nuaym bin Masood, who was from the tribe of Ghatafan, came to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam and declared that he had secretly embraced Islam and asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to allow him perform some benefits for the Muslims. अब आप देखिए अंदरूनी तौर से भी सुभान अल्लाह, अल्लाह का काम है जो वो किस तरीके से चलता है, एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिकमत है वो किस तरीके से रंग लाती है। अभी नुएम बिन मसूद जो थे वो गताफान के ट्राइब्स के थे, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके डिक्लेयर किया कि उन्होंने सीक्रेटली दीन इस्लाम को कबूल किया है, और फिर उनसे वो परमिशन ले रहे हैं कि उनको इजाजत दी जाए कि वो कुछ मुसलमान के काम आ सके। The Prophet sallallahu alaihi wasallam allowed him to do anything that could aid the Muslims in the present distress, applying any stratagem that he saw fit.
The man shuttled between the Jews, the Quraysh and the tribe of Ghatafan, inciting each party to distrust the other. सुभान अभी ये जो नुएम बंदा है, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान लिया कि ये इसने दीन इस्लाम कबूल किया है और ये मुस्लिम नेशन को या इस्लाम को जो है सर्व करना चाहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक फ्री हैंड दिया, उनको कहा कि ये जो करंट हमारी डिस्ट्रेस या स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है उसके अंदर तुमको जो सही लगता है स्ट्रैटेजी के लिहाज से वो तुम करो। अब इस बंदे ने क्या किया, इसकी भी समझदारी देखें। ये यहूद, कुरैश और गताफान के बीच में एक दूसरे को भड़काता रहा, एक दूसरे को। अभी हमें क्या करना है, ये एकजुट हो गए ना। यूनिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अप द स्ट्रेंथ। यानी कहीं पर भी अगर एकजुट हो जाते हैं ना लोग, एका हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये हर जगह पे हम देखेंगे। अब अगर हम इसके तरफ से अगर एक लेसन लेना चाहें या अपने लिए कुछ इस्लाह के पॉइंट्स पिक करना चाहें, तो एक बात ध्यान में रखें कि चाहे वो फैमिली स्ट्रक्चर हो, चाहे वो सोसाइटी यूनिट हो, या ओवरऑल एक नेशनल लेवल के लेवल पे हम देखें, जहां कहीं भी इंसानों के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में यूनिटी आ जाती है ना, तो दैट इज द स्ट्रेंथ इन इटसेल्फ। अभी मुस्लिम्स के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मुस्लिम्स के जो दुश्मन थे वो सारे एकजुट हो गए थे। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि कुछ भी करके इनको ब्रेक किया जाए, और वही चीज नोएम ने करना शुरू किया। उसने कुरैश और यहूद और गताफान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना शुरू किया। तो पहले तो वो पहुंचा चीफ्स ऑफ बनु कुरैजा के पास और उनको बताया कि ये जो कुरैश है ये उनकी तरफ से नहीं लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जाके इनको छोड़ के भाग जाएंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं है। और इसको आर्ग्यू करने के लिए उसने कौन सा, he claimed that Quraysh would retreat if they perceived that victory over Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not possible, leaving them to bear the revenge of the Muslims। यानी उसने ये भी आगे कमेंट पास किए कि ये जो कुरैश है इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करें, लेकिन अगर वो उस चीज में कामयाब नहीं होते तो वो उनको ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे, वो उनकी सिक्योरिटी को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और फिर उनका मामला जो है वो मुस्लिम्स जो है उनके ऊपर रिवेंज लेंगे। नोएम रदियल्लाहु अन्हु then headed to the camp of the Quraysh and said words that would garner similar results। फिर उसने सेम सिमिलर टाइप की बातें इनके दिल में भी डाली, कुरैश के भी दिल में डाली, बनु कुरैजा को लेकर। तो वो जो है वो प्लान्ड मूवमेंट कर रहा था कि इनके बीच में जो नाइतफाकी पैदा हो और इनके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए डिस्ट्रस्ट पैदा हो। फिर Jews, he stated that the Jews regretted breaching their covenant with Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers, and they maintained regular correspondence with the Muslims, and that any people sent as a guarantee to them would be sent in the camp of the Muslims as captives। फिर उन्होंने जो है यहूद के बारे में भी बताया, कहते हैं वो लोगों ने अपना अक़द जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो मुस्लिम्स और मुस्लिम सहाबास के साथ तोड़ दिया, लेकिन एक्चुअली उनका करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन मुस्लिम्स के साथ चालू है, लगातार उनके साथ उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे चल रहे हैं। कहते हैं कि ये जो है इनके पास अगर आप कोई भी गारंटी के तौर पे भी आप भेजोगे यहूद के पास, तो वो जो है वो आपके मैसेंजर्स को या आपके लोगों को उनके पास बंदी बनाकर, मुस्लिम्स के पास बंदी बनाकर भेज देंगे। तो मेनली वो क्या कर रहे थे, ही वॉज क्रिएटिंग रिफ्ट्स, यानी इधर उधर की डिफरेंट बातें और इंफॉर्मेशन और भड़का के इन लोगों को डिवाइड कर रहे थे। यस सुसना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब आप देखिए एक बंदा जो है वो काफी है तोड़ने के लिए, यानी पीपल हु टॉक, पीपल हु पास इंफॉर्मेशन, पीपल हु डू सो मेनी, ये कहते हैं ना जिसके कि यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके वहां पर देना, वहां से इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, उसके बाद मिसकम्युनिकेशन करना। इट इज वेरी इजी टू ब्रेक एनी स्ट्रक्चर। सो दिस वन पर्सन वाज सक्सेसफुल। He therefore encouraged the Quraysh not to send any people to guarantee to the Jews. As a third task, he went to the people of Ghatafan and did the same. यानी वो बनी कुरैजा के पास गए, वो कुरैश के पास गए, वो गताफान के पास गए और जाके सिमिलर सिचुएशन में उन लोगों को भड़काया। On the night of Saturday in the month of Shawwal, 5th after Hijri, both the Quraysh and the tribe of Ghatafan dispatched messages to the Jews, pressing them to go to war against Muhammad sallallahu alaihi wasallam। अभी सैटरडे के दिन मंथ ऑफ शवाल में 5th आफ्टर हिजरी कुरैश और ट्राइब ऑफ गताफान ने मैसेज भेजे यहूद को, यहूद को फोर्स करने लगे कि आप जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करो। ज्यूज ने उनको फिर से दोबारा से मैसेज किया दैट दे वुड नॉट फाइट ऑन सैटरडे, एडिंग दैट दे नीडेड सम पीपल फ्रॉम अमंग देम एज होस्टेजेस एज अ गारंटी फॉर देयर स्टेडीनेस। एंड एग्जैक्टली यहूद ने वैसे ही किया जैसा नोएम रदियल्लाहु अन्हु ने गताफान और कुरैश को बताया था।
पहले तो उन्होंने कहा, यहूद ने कहा सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग फाइट नहीं करते। दूसरा उसने कहा कि हमें एज अ गारंटी तुम्हारे कुछ लोग चाहिए, कुछ हॉस्टेजेस चाहिए, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि तुम हमारे साथ हो। On receiving their replies, the Quraysh and the tribe of Ghatafan began to believe the warning that Nuaym had given them. यानी इसकी ये रिप्लाई से उन लोगों को नुएम रदियल्लाहु अन्हु की बातों पे यकीन आ गया। वो कहते हैं हमको नुएम रदियल्लाहु अन्हु ने यही चीज की वार्निंग दी थी कि यहूद जो है वो हीलाबाजी करेंगे, बहाने करेंगे। तो उन्होंने तो पहले अपना वो सैटरडे वाला बता दिया, फिर उन्होंने कहा कि हमको कुछ गारंटी चाहिए, तो हम आपके बंदे जो हैं वो लेंगे और उनको रखेंगे एज अ गारंटी, और फिर हम जो है अपना काम करेंगे। तो इन लोगों को नुएम रदियल्लाहु अन्हु की बात पे बिल्कुल यकीन आ गया। So they sent another message to the Jews, calling them to begin the war with the Muslim and exclude the condition of hostages. फिर उन्होंने क्या किया, गताफन और कुरैश ने वापस दोबारा से यहूद को मैसेज भेजा कि आप जो है वॉर शुरू कर दो, और उन्होंने वो जो बंदे होस्टेजेस वाली जो बात थी उसको उन्होंने कहा कि वो कंडीशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। The scheme that Noam's plotted proved successful, and an atmosphere of distrust and suspicion began to take shape among his disbelieving allies, which reduced their morale to a considerable degree. यानी अब ये जो नोएम रदियल्लाहु अन्हु का जो प्लान था वो बहुत सक्सेसफुल रहा, और इन लोगों के आपसी जो ताल्लुकात थे उसके अंदर डिस्ट्रस्ट और कंफ्यूजन और उनका मोराल जो है वो बिल्कुल नीचे चला गया। Meanwhile, the Muslims were preoccupied with supplications to their Lord for the protection of their homes and for the security of their families. और मुस्लिम्स जो है वो कंटिन्यूसली अपनी दुआएं कर रहे थे अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए। On his part, Allah's messenger invoked Allah's wrath on the confederates with the following supplications. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये लोग जो इकट्ठे अलाइज कॉन्फेडरेट्स हुए थे उनके अगेंस्ट में दुआ कर रहे थे। Allah Azza wa Jal, you are quick in account, you are the center of the book, we beg you to defeat the confederates. यानी अल्लाह ताला से वो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इस, यानी अल्लाह के लिए तो कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, तो बहुत जल्द इनका हिसाब लो और इनको डिफीट कर दो, इनको हरा दो। Allah the Glorious and the Exalted responded to the supplications of the Muslim. He sent along with the difference and disagreement that emerged in the hearts of the disbelievers for each other. Forces of nature, wind, rain and severe cold which blew away their tents, turned away their cooking vessels and other equipments. अभी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने क्या भेजे? ठंडी और विंड और रेन, यानी नेचर के हिसाब से उन लोगों की तहस नहस शुरू हो गई थी। उनके जो खेमे थे वो उड़ने लगे, उनके बर्तन जो है वो उलट पुलट होने लगे, उनके इक्विपमेंट यहाँ वहां बिखर गए। During that very cold night, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam dispatched Hudayfa bin al-Yaman रदियल्लाहु अन्हु to collect news about the enemy. अब जब ये नेचर का जो कहर नाजिल हो रहा था दुश्मनों के कैंप्स पर, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैफा बिन अल-यमान रदियल्लाहु अन्हु को भेजा कि जाके इंफॉर्मेशन ले आए एनिमीज के बारे में। He found them making preparations to leave while frustrated in their inability to achieve their target. अब of course जब खाना पीना और बेसिक नेसेसिटीज उनकी खराब हो जाए, इतने तूफान में उनके कैंप्स जो हैं वो उखड़ जाएं, तो वो फटाफट अपने आप को समेटने लगे, लपेटने लगे अपने सामान वापसी के लिए, और डेफिनेटली इस बार भी उनका टारगेट अचीव नहीं हुआ। Allah Azza wa Jal fulfilled his promise, spared the Muslims from fighting a fearsome army, supported his servant Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and inflicted a heavy blow to the confederates. Allah Azza wa Jal ने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने दुश्मनों के ऊपर जो है नेचर के थ्रू अच्छा खासा अपना गजब और अजाब नाजिल किया, और इन लोगों के दिलों के अंदर डिस्ट्रस्ट, इन लोगों के दिलों के अंदर खौफ तारी किया, और जो मुस्लिम आर्मी जो छोटी थी तादाद में उनके ऊपर किसी भी तरीके की हौल ना की, क्योंकि इतना बड़ा नंबर था, कहाँ 3000 कहाँ 10,000। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की बचत की, उनको प्रोटेक्शन दिया और दुश्मनों को तहस नहस किया। The Battle of the Trench took place in the 5th year of Hijrah. The siege of Medina began in the month of Shawwal and ended in the month of Zulqa'dah, lasting for more than a month. In fact, it was more of a battle of nerves and not of losses, as no bitter fighting was recorded. Nevertheless, it was one of the most decisive battles in the early Islamic history and proved beyond a shadow of doubt that no force, however huge, could exterminate the burgeoning Islamic power growing steadily in Medina. After Allah Azza wa Jal caused the confederates to retreat, his messenger declared confidently, "From now we engage them and they will not engage us. We will mobilize to them." Alhamdulillah, ये जंग खंदक जो है 5th year of हिजरी में हुई थी, और जो मदीना के ऊपर अटैक्स हो रहा था तकरीबन शवाल में स्टार्ट हुआ था और जुल्कादा में ख़त्म हुआ, जिसकी मानी है कि 1 मंथ लगे उसको होने में। और ये जो बैटल थी ना, ये लॉसेस की बैटल नहीं थी, ये नर्व्स की थी, यानी इट वाज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल बैटल।
और इसमें कोई बिटर फाइटिंग रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन बहुत डिसाइसिव, बहुत सोच समझ के, सोच बूझ के इसको लेकर आगे चला गया था। और ये इस्लामिक हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुई है। जैसे कि कोई भी फोर्स जो है, जो इस्लामिक पावर को मदीना में ब्रेक करना चाह रहा था, उसकी जो है अल्लाह ताला ने उनको अलाउ नहीं किया था। अलग अलग जंगों में, अलग अलग एक्सपीडिशंस, अलग अलग इन्वेशंस में हमने देखा कि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इस पर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टेटमेंट किया कि अभी से जो है हम उनको एंगेज करेंगे, वो हमें नहीं करेंगे, और हम मोबिलाइज करेंगे, यानी वी विल मूव। हम नहीं अलाउ करेंगे उनको कि वो हम पे अटैक करें। जी रीन, आई सॉ योर हैंड, टेल मी डियर। नहीं, मुझे बस ये बतानी थी कि उस जमाने में पीपल वर मोर पावरफुल, मोर क्लोज टू इस्लाम, बट सी उनके पास तो जो भी था, बट दे रिलाइड ऑन दुआ एंड अल्लाह ताला हेल्प देम। यस, हम वहीं पे लैक कर जाते हैं, हमें खुद से सब करना है, बस दुआ नहीं करनी है। एब्सोल्युटली। इनकी स्टार्ट भी दुआ से होती है, इनकी मिडिल में भी दुआ होती है, इनकी एंड में भी दुआ होती है। स्टार्ट भी Yes. अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह से, अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह से ही मदद, अल्लाह, सब कुछ अल्लाह से मामला होता है इनका। यानी ये सारी चीजों का जो है ना मकसद यही है कि हम जाने, हम समझे, हम सब अपनी अपनी जंगे लड़ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है ना, जो हमारी डिसाइसिव मूवमेंट्स होती हैं, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है। कई जगहों पर हम सोचते हैं हमारी जो डिफरेंट नेगेटिव एक्टिविटीज होती है, मसलन कई जगहों पर हम पहले ही हथियार डाल देते हैं, कई जगहों पर हमारे अंदर कोई उम्मीद ही नहीं बची होती, कई जगहों पर हम अपने आप को क्रेडिट देने लगते हैं, कई जगहों पर हमें अपने आप के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस आने लगता है कि सारा कुछ जो है वो मैं ही कर सकती हूँ। यानी हमारा जो तर्ज अमल है ना, वो बिल्कुल भी जो होना चाहिए उसके मुख्तलिफ होता है। So these are the things that we have to learn. What is the way? How are we supposed to move? कहाँ पर ताकत यूज करनी है, कहाँ पर इंटेलेक्चुअल यूज करना है, और हर सिचुएशन में अल्लाह पे रिलाई करना है, और अल्लाह के मामले में डाउटफुल नहीं होना है। वी डोंट हैव टू बी डाउटफुल। हमें अपने ये शैतानी वसवसों को दूर रखना है। हमें हमारी नेगेटिव और डिविलिश और इविलिश जो स्ट्रैंड है ना हमारे अंदर, वो नफ्स अमारा को भी कंट्रोल में रखना है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इट्स मोर ऑफ अ साइकी, इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजी, इट्स मोर ऑफ अ फिलोसफी। और जब हमें ये चीज समझ आ जाती है ना, तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह की मदद भी आती है, और हमारे अंदर एक सुलझाव और एक ठहराव आता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट्स, बिकॉज ये अलग अलग, अब आप देखें तीनों जंगों का अगर हम एक ओवरऑल समराइज करें, जंगे बदर ले लें, हम जंगे उहद ले लें, हम जंगे खंदक ले लें, आप देखें तीनों कितनी डिफरेंट थी। तीनों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा था, व्हाट वाज हिज मोडस ऑपरेंडी, किस तरीके से वो आगे बढ़ते गए, लेकिन हर जंग में, हर एक्सपीडिशन में, हर इन्वेजन में एक चीज कॉमन थी कि उनका रिलेशन विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल कम नहीं हुआ। उनका कनेक्शन, उनकी हमद सना, उनकी दुआ, उनका हर सिलसिला जो था वो अल्लाह के साथ कनेक्टेड था। सो दिस इज वन थिंग दैट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड्स, और इसी चीज को हमको इम्प्लीमेंट आगे करते चलना है। जी, I saw some mic unmuted. Okay, moving forward. The invasion of Banu Qurayza. On the very day Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam returned to Medina after the battle and was freshening up in Salama's radhiyallahu anha's house, when Jibreel Amin came to him and asked why he had unsheathed his sword. He should head toward the locality of the treacherous Banu Qurayza, fight against them. Jibreel Amin related to him that he, along with the procession of angels, would go on ahead to shake their forts and cast fear in their hearts. अभी सेम डे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में लौट गए आफ्टर बैटल, और फिर सलमा रदियल्लाहु अन्हा के घर पे वो फ्रेशन अप हो रहे थे। तभी जिब्रील अमीन आए उनके पास, उनसे कहा कि अपनी तलवार को दोबारा से क्यों उन्होंने म्यान में समझो डाल दी। उनको जो है कहाँ जाना चाहिए, उन्हें बनु कुरैजा के पास जाना चाहिए जिन्होंने दगाबाजी की, और उनके अगेंस्ट में फाइट करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एक एंजल्स का जो प्रोसेशन है, यानी ग्रुप ऑफ एंजल्स जो हैं, वो उनसे पहले उनके तरफ जाएंगे बनु कुरैजा के पास, और उनके फोर्ट्स को हिलाकर उनके दिलों के अंदर खौफ तारी करेंगे। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam immediately summoned the prayer caller and ordered him to announce that every listener should offer the asr prayers at Banu Qurayza. अभी आप देखें, अभी एक जंग से आए हैं, अभी उनकी हालत क्या है, कैसी उनकी स्टेट है, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, और अभी हुक्म आ रहा है कि सीधा पहुंचो बनु कुरैजा में और उनको थोड़ा सा उनके साथ डील करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएटली उसको फॉलो किया।
अजान जो मुअज्जिन ने उनको बुलाया, कहा अजान दो और सारे जो सुनने वाले उनको कहो कि असर की नमाज जो है वो बनु कुरैदा में पढ़ी जाएगी. He appointed Ibn Maktum radhiyallahu to administer the affairs of Medina in his absence and entrusted the war standard to Ali bin Abi Talib radhiyallahu, who marched towards the appointed target and came close enough to hear the Jews abusing Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. अभी इब्न मखदूम को उन्होंने मदीना का इंचार्ज बनाया, अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को फ्लैगशिप दी और चल पड़े. अब ये लोग इतने करीब पहुंच गए थे यहूद के, जहां पर वो उनको सुन सकते थे कि वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्यूज कर रहे थे. The Prophet set out at the head of the 3,000 infantrymen and 30 cavalry from the Ansar and Muhajirin. On their way to the enemy, the time for the Asr prayer became due. So some of them refused to observe it until they reached the enemy, while others performed it on the way. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam objected to neither of these two decisions. अब जैसे ही वो निकले थे तो ऑफ कोर्स 3,000 आदमी थे तकरीबन अंसार और मुहाजिरिन की कॉम्बिनेशन में. अब वो पहुंचे तो असर की अजान हो गई थी, तो आधे जो हैं उन्होंने उसी वक्त ही सलाह अपनी अदा की और कुछ जो थे उन्होंने कहा हम उधर पहुंच के करेंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को ही अप्रूवल दिया हुआ था. Upon reaching the locality of Banu Qurayza, the Muslims laid siege to their forts. Seeing the terrible situation they were in, the chief of the Jews, Ka'b bin Asad, offered his people 3 alternatives. अब जैसे ही मुसलमान आर्मी वहां पर पहुंची तो ज्यूज को आइडिया लग गया कि अभी उनकी जो हालत है वो क्या होने वाली है. और वैसे भी जैसे जिब्रील अमीन ने कहा था, एंजल्स का ग्रुप जो था वो पहले जाकर उनके फोर्ट्स को शेक करके उनके दिलों में खौफ तारी कर चुके थे अल्लाह के हुक्म से. तो फिर अब इनका जो हेड था काब बिन असद, वो अपने लोगों को 3 ऑल्टरनेटिव्स देने लगा. क्या थे वो 3 ऑल्टरनेटिव्स? फर्स्ट इज embrace Islam and their lives, wealth, women and children would be in full security. He reminding them that such behavior was not be in the opposition of what they had read in their books about the authenticity of Muhammad sallallahu alaihi wasallam's prophethood. Number 2, to kill their children and women and then challenge the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers to a fight whose consequences will either be that they kill the Muslims or be killed by the Muslims. Number 3, conduct a surprise attack against Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the people on Saturday, a day that all understood they would not participate in any fighting. अब 3 ऑप्शंस उसने क्या दिए? पहला बोलता है कि इस्लाम को कबूल कर दो और अपनी जान, अपने माल, अपनी औरतें, अपने बच्चों को जो है पूरी सिक्योरिटी मिल जाएगी. फिर उसने कहा कि ये बिहेवियर was not to be in the opposition, यानी हमारी किताबों के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तो हमें पता है कि वो ऑथेंटिक नबी है, तो ये हमारी बुक्स के अगेंस्ट नहीं है, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन वो कहता है कि हमारे बच्चे और औरतों को हम लोग कत्ल खुद कर देते हैं, हम मार देते हैं, और फिर हम लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को चैलेंज करते हैं. तो इसमें 2 चीज हो सकती है, या तो मुस्लिम्स के हाथों हम मारे जाएंगे या हम मुसलमानों को कत्ल करेंगे. तीसरा ऑप्शन कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाज के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करते हैं सैटरडे को, क्योंकि उन्हें पता था कि सैटरडे को हम लोग नहीं फाइट करते, लेकिन हम लोग जो है एक सरप्राइज अटैक करते हैं. When none of these alternatives appealed to them, their chief angrily and indignantly turned to them, saying, "You people have never been decisive in decision making since birth." अब वो लोगों को, उसके जो लोग थे उसको ये तीनों ही डिसीजंस पसंद नहीं आए. तो जो उनका लीडर था काब बिन असद, वो भड़क गया, गुस्से में आ गया. वो कहता है तुम लोगों के अंदर कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग का पावर था ही नहीं, पैदाइश से लेके अब तक तुम लोग कंफ्यूज्ड ही हो. अब आप देखिए ये भी एक ना बहुत जबरदस्त क्वालिटी है. सम पीपल ना, उनकी ओपिनियन ही नहीं होती, उनका डिसीजन ही नहीं होता. आप उनसे कोई भी सवाल कर लें, कुछ भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज पूछ लें, उनकी अपनी एक ओपिनियन होती ही नहीं है. I mean, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. I mean, don't think कि I'm saying something from the books or whatever. This is my personal opinion. लेकिन हमें जो है ना, एज अ पेरेंट, एज एन इंडिविजुअल, ये एक क्वालिटी डेवलप करनी होती है बच्चों के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बच्चों के, जब वो छोटे होते हैं, जैसे जैसे अडोल्सेंस में पहुंचते हैं, टॉडलर्स एंड अडोल्सेंस की एज में पहुंचते हैं, हमें ना उनको थोड़े से डिसीजन लेने की आदत डालनी चाहिए. Give them the authority to pick up the foods that they like. Give them the authority to pick up the dresses they like. उनको कलर, उनको ऑप्शंस आप दें, बेशक उनको गाइड करें, लेकिन आप उनके अंदर जो है ना, उनकी स्पाइन डेवलप करें, ताकि वो एक अपना डिसीजन ले सकें, वो एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें, वो एक अपनी पहचान बना सकें. अगर हम मदर्स, ओके, कई बार मैंने देखा है कुछ मदर्स भी और कुछ वाइफ्स के तौर पे भी, यानी स्पाउसेस को भी कुछ लोग जो है ना
अपने अंगूठे के अंदर रखना पसंद करते हैं, उनका डिसीजन ही फाइनल है, उन्हीं की बात चलेगी, उन्हीं की ओपिनियन चलेगी। यानी बीइंग सो ओवर अथॉरिटेटिव दैट आप एक अगले बंदे को जो है ना ऐसी पर्सनालिटी बना देते हैं कि उसकी अपनी ओपिनियन, उसका अपना डिसीजन होता ही नहीं है। दैट्स टोटली रॉन्ग। Each individual has a right to express their opinion. Each individual should have the ability to take a decision. उन्होंने अपना डिसीजन लेने की उनमें ताकत और कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। एंड वी एज मदर्स एंड स्पाउसेस शुड बी एबल टू डेवलप दैट काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट जहां पर ईच इंडिविजुअल इज रेडी टू यूज देयर डिसीजन, दिस इज देयर राइट। तो इस चीज के ऊपर भी आप ध्यान रखें, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन, लाइक सुभान अल्लाह, मैरिज के लिहाज से बहुत सारी काउंसलिंग इसी मैटर पर होती है, जहां पर जो लड़के होते हैं ना, उनकी मॉम्स उनके ऊपर इतना हावी है कि सुभान अल्लाह शादी के बाद भी दे गो बैक टू देयर मॉम्स फॉर डिसीजन विच इज पर्टेनिंग टू देयर ओन फैमिली। ऐसा नहीं होना चाहिए। ममाज बॉय और ममाज गर्ल बना के हमें हमेशा अपने बच्चों को नहीं रखना है। इसमें कोई ये पॉजिटिव चीज नहीं है, बाय द वे दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग। क्योंकि आज आप हैं, कल आप नहीं हैं। आप उनको उतना केपेबल करें मेंटली भी कि वो अपने लाइफ के एक अच्छे डिसीजन ले सकें, उनको ट्रेन करें, उनको सिखाएं, उनके पास एक एज अ गार्डियन, एज अ मेंटर मौजूद रहें, लेकिन लीड उनको लेने दें। लेट देम डिसाइड, लेट देम टेक द इनिशिएटिव, लेट देम हैव एन ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स। जैसे हमने देखा कि अभी ये चीफ जो था काब बिन असद, उनको बेहतरीन 3 ऑप्शंस, एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन वुड हैव बीन द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन ये लोग इस ऑप्शंस को भी नहीं समझ पा रहे, मौके की नजाकत को भी नहीं समझ पा रहे। यानी इन्होंने अपना भी बेड़ा करना है, अपनी भी जानों को गंवाना है, और अपने डिपेंडेंट्स, अपनी औरतों और अपने बच्चों और अपने वेल्थ को भी गंवाना है। विल सी हाउ इट गोज इंशाल्लाह, बट द टाइम इज अप। लेट मी कंप्लीट दिस पैराग्राफ और फिर हम इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि आप लोग जो है कभी भी डिसीजन मेकिंग आपसे हुआ नहीं, आपकी पैदाइश से ऐसी ही रहा। The dark future already visible, they made contact with some Muslims who had maintained good relations with them in order to learn about their fate in light of the current circumstances. They requested that Abu Lubaba radhiyallahu anhu be sent to them for advice. अभी कुछ जो ज्यूज थे उनके रिलेशन मुस्लिम्स के साथ अच्छे थे, तो उन्होंने उनके साथ राब्ता करना शुरू किया और उनको बताया कि मौजूदा हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अबू लुबाबा रदियल्लाहु अन्हु उनके पास पहुंचे जिससे कि वो थोड़ी सलाह मशवरा करें। On his arrival, the man began to request favors from him, while the women and children cried desperately. अभी आदमी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और फेवर मांग रहे हैं मुस्लिम से, और औरतें बच्चे जो हैं वो रो रही हैं desperately. As an answer to the request for advice, he pointed to his throat while saying that death was awaiting them. He immediately realized that he had betrayed the Prophet Muhammad's trust. So he left and went directly to the Prophet's mosque in Medina and tied himself to a wooden pole, swearing that no one would untie him except Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. He also added that he would never enter the locality of Banu Qurayza as a recompense for the grave mistake that he committed. अब ये जो है ना अबू लुबाबा उनके साथ बातचीत उसने कर दी, और फिर उसके बाद उन लोगों के थ्रोट, उनके हलकों के पास पॉइंट करते हुए कहा कि तुम लोगों की कत्ल तो लाजिम है। और फिर उसने सडनली उसको फीलिंग आई कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं दगाबाजी तो नहीं करी। तो वो इमीडिएटली निकले और मदीना में मस्जिद में पहुंचे और अपने आप को एक वुडन पोल के साथ बांध दिया, और फिर कहा कि कोई भी मुझे खोलेगा नहीं एक्सेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और फिर उन्होंने अपने आप से इरादा भी किया कि वो बनु कुरैदा की लोकेलिटी में भी एंटर नहीं करेगा। अब आप देखिए ये जो अबू लुबाबा रदियल्लाहु अन्हु है, व्हाई इज ही फीलिंग लाइक दैट, कि एक तो उनके साथ जंग का माहौल चल रहा है, वो मुस्लिम नेशंस जो है उनके साथ अटैक करने वाले, लेकिन चूंकि कुछ यहूदी उनके दोस्त थे और उन्होंने उससे बात करने के लिए उनको बुलाया, सडनली ही फेल्ट कि शायद मैंने मुसलमान आर्मी के साथ या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दगाबाजी की। जैसे ही वो सेल्फ रियलाइजेशन उनको हुआ, इमीडिएटली वो मदीना में आए, मस्जिद में अपने आप को पोल से बांध दिया, एक वुडन पोल से, और कहा सबको कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनको खोल सकते हैं। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, तो उन्होंने क्या कहा, if he had come to me, I would have begged Allah to forgive. But since he tied himself out of his own free will, then it is Allah who will turn to him in forgiveness. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि उसने खुद रियलाइज किया कि उन्होंने मिस्टेक की या जो भी है, और अगर वो मेरे पास आते तो मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल से उनकी दुआ की, मगफिरत की दुआ करता। लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद अपनी कदर जो है पिक करी, वो खुद जाके अपनी सजा उन्होंने लगा दी कि भाई मैं उधर टाई कर देता हूँ, तो कहते हैं अब ये जो मामला है वो अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह फॉरगिव करे या क्या। The siege could not have been tolerated for a longer time by the Jews of Banu Qurayza, as stocks of food and water was abundantly available for them.
and their strongholds was greatly fortified. However, the Muslims were camped in the open land and suffered from cold, hunger, and fatigue, which resulted from the endless battles they were fought against the army of Confederates. Nevertheless, this too was a battle of nerves, and Allah had cast fear in the hearts of the Jews, and their morale had almost completely collapsed. This was especially true when two Muslim heroes, Ali bin Abi Talib radiallahu anhu and Az-Zubair bin Awwam radiallahu anhu, proceeded towards them, with Ali radiallahu anhu swearing that he would never stop fighting until he had either stormed their fort or been martyred like Hamza radiallahu anhu. अभी मौजूदा हाल ये थे कि वो जो है ज्यूज बनी कुरैदा की उनके पास बहुत सारा फूड वाटर सब कुछ उनके पास मौजूद था, तो वो लोग जो है उनका सर्वाइवल तो इजीली चल रहा था, लेकिन मुस्लिम जो थे वो बनु कुरैदा के बाहर कैंप किए हुए थे और कोल्ड था, हंगर था, फटीक थी और इतने ज्यादा बैटल्स बैक टू बैक थे। फिर भी जो है फिर भी ये वाला जो बैटल था अगेन वो ब्लडशेड वाला बैटल नहीं था, ये भी नर्व्स वाला यानी मेंटल फाइटिंग थी बहुत ज्यादा कि कौन सस्टेन करता है, किसके अंदर ज्यादा टॉलरेंस है। और फिर इसमें जो हमारे दो हीरोज का जिक्र हो रहा है, अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु, जुबैर बिन अवाम रदियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं वो प्रोसीड कर रहे हैं और अपने वो कस्में उठाई हुई है। अली रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम जो है लड़ना बंद नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्टॉप फाइटिंग जब तक कि हम इनके फोर्ट्स को तहस नहस ना कर दें और जब तक हम शहीद ना हो जाए हमजा रदियल्लाहु अन्हु की तरह। और हम जानते हैं कि ज्यूस के पास बेसिक्स, उनके पास खाना पीना सारे मौजूद थे, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनके दिल में फियर तारी किया हुआ था, उनका मोरल जो है वो कंप्लीटली कोलैप्स हो गया हुआ था। तो इंशाल्लाह इसके आगे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे ऑन संडे। तो आई वुड लाइक टू क्लोज इट नाउ। कोई अगर क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है तो इट्स एन ओपन फोरम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर नहीं है तो वी विल क्लोज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।